Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Assalamu alaikum. Today is our 25th lecture. In the previous lecture, we have learned about JK flip-flop. We see what was the difference between a JK flip-flop and an RS flip-flop. How the invalid conditions of SR flip-flops are covered in JK flip-flop. After that, we learn about two asynchronous inputs, preset and clear, and see how they perform, what was the effect of the preset and clear input on the output. And after that, we have seen the operating characteristics of the flip-flop, like hold time, setup time, propagation delay, clock frequency, etc., etc. Today we will have a look on the analysis of clocked sequential circuit. Analysis describes what a given circuit will do under certain operating conditions. The behavior of a clocked sequential circuit is determined from the inputs, the outputs, and the state of its flip-flops. The output and the next state are both functions of the input and the present state. The analysis of a sequential circuit consists of obtaining a table, a diagram, or for the time sequence of inputs, outputs, and internal state. It is also possible to write Boolean expressions that describe the behavior of the sequential circuit. These expressions must include the necessary time sequence either directly or indirectly. A logic diagram is recognized as a clock sequential circuit if it includes flip-flops with clock inputs. The flip-flops may be of any type, and the logic diagram may or may not include combinational logic gates. In this section, we will introduce an algebraic representation for specifying the next state condition in terms of the present state and input. A state table and a state diagram are then presented to describe the behavior of the sequential circuit. Another algebraic representation is introduced for specifying the logic diagram of the sequential circuit. Examples are used to illustrate the various procedures. आज जो है वो हम देखेंगे कि हम कैसे जो हमने क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़े हैं फ्लिप फ्लॉप्स को देखते हुए, हम उन फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हुए जो सीक्वेंशियल सर्किट्स बनाते हैं, हम उनका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। एनालिसिस का मतलब ये है कि एक सर्किट अंडर सर्टेन कंडीशंस क्या आउटपुट्स देगा या उसका क्या बिहेवियर होगा। ठीक है, अब जो क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स है उसमें जो नेक्स्ट स्टेट है या आउटपुट है वो प्रेजेंट स्टेट और फ्लिप फ्लॉप और इनपुट दोनों पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, और एनालिसिस ऑफ अ सीक्वेंशियल सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेबल और अ डायग्राम। हम एनालिसिस करने के लिए एक स्टेट टेबल या एक लॉजिक डायग्राम के पहले देखेंगे, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे, उसकी इनपुट आउटपुट और इंटरनल स्टेट्स को टाइम सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, फिर उस एनालिसिस के हिसाब से हम उसकी बूलियन एक्सप्रेशंस लिखेंगे, उन बूलियन एक्सप्रेशंस को हम मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, मिनिमम लेवल पे लेके जाएंगे, फिर उन एक्सप्रेशंस को हम लॉजिक डायग्राम से इंप्लीमेंट करेंगे, और अगर उस लॉजिक डायग्राम में फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो ही वो क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट होगा। ठीक है, हम ये सारा काम करेंगे, उसके साथ हम थोड़ी एग्जांपल्स के साथ हम एक एग्जांपल लेंगे, फिर हम उसको फॉलो करते हुए उसका एनालिसिस करते हुए जाएंगे। सबसे पहली चीज जो आती है इसमें एनालिसिस में वो आती है स्टेट इक्वेशन।
The behavior of a clock sequential circuit can be described algebraically by means of a state equation. A state equation, also called a transition equation, specifies the next state as a function of the present state and inputs. Consider the sequential circuit shown in the next slide that will detect as a zero detector. That will act as a zero detector. ठीक है, तो स्टेट इक्वेशंस हम एक हमारे पास एक सर्किट है, उसकी लॉजिक डायग्राम है. सबसे पहले हम उसकी इक्वेशंस लिखेंगे. ठीक है, वो इक्वेशंस जो आप लॉजिक डायग्राम से लिखोगे फ्लिप फ्लॉप्स की प्रेजेंट स्टेट और इनपुट्स के हिसाब से, उन इक्वेशंस को हम स्टेट इक्वेशंस को कहते हैं, जो कि हमें फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट के बारे में बता रहे होते हैं. ठीक है, इसी चीज को हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं. जिस तरह ये मेरे पास एक सर्किट मुझे नजर आ रहा है. ठीक है, अब इस सर्किट की अगर हम स्टेट इक्वेशंस पे बात करें तो मेरे पास दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं. दो फ्लिप फ्लॉप्स की दो स्टेट्स होंगी. ठीक है, एक आपके पास ए ऑफ टी नेक्स्ट ए आफ्टर स्टेट और एक बी आ रही है. अच्छा, ये वही सर्किट के बारे में चीजें लिखी हुई हैं. मैं इसको यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेन करता हूँ. हम देख रहे हैं जो लॉजिक डायग्राम में हमें दो फ्लिप फ्लॉप्स नजर आ रहे हैं. दो डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं. डी फ्लिप फ्लॉप के हमने देखा था जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इनपुट पे होता है वही आपको आउटपुट के ऊपर दे रहा होता है. तो डी फ्लिप फ्लॉप के साथ हम आगे देखेंगे कि जब हम डिजाइन प्रोसीजर में भी जाएंगे, किसी भी सर्किट को इम्प्लीमेंट करना सबसे इजी डी फ्लिप फ्लॉप के साथ ही होता है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंडीशंस देखें, ए और ये एक्स है एट टाइम टी. ठीक है, एट टाइम टी आपके पास जो आउटपुट होगी वो होगा, आउटपुट आपके पास t+1 होगी. ये आपको नेक्स्ट स्टेट को शो कर रहा है और a ऑफ t जो है ये आपके पास प्रेजेंट स्टेट को शो कर रहा है. ठीक है, तो अब अगर मैं इस फ्लिप फ्लॉप 1 के लिए इक्वेशन देखूं तो मेरे पास फ्लिप फ्लॉप 1 यहां पे क्या हो रहा है, x ऑफ t और a ऑफ t आपस में एंड हो रहे हैं. ठीक है, और दूसरी इक्वेशन देखूं तो यहां पे मेरे पास b ऑफ t और x ऑफ t आपस में एंड हो रहे हैं और यहां पे ये दोनों प्लस हो रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की अगर मैं स्टेट इक्वेशन लिख रहा हूं तो वो मेरे पास a ऑफ t+1 इज इक्वल टू x ऑफ t इंटू a ऑफ t प्लस x ऑफ t इंटू b ऑफ t आएगी. तो ये मेरे पास फर्स्ट स्टेट इक्वेशन आ रही है. ठीक है, अब सेकंड स्टेट इक्वेशन को देखते हैं. ठीक है, b के लिए तो b ऑफ t+1 आपके पास नेक्स्ट स्टेट है जो कि इक्वल है. ठीक है, a बार x ऑफ t, a बार ऑफ t और x ऑफ t के. ठीक है, ए बार ऑफ टी और एक्स ऑफ टी के, और दूसरा सिग्नल क्लॉक की है. तो यहाँ पे मैं ए बार ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी लिख देता हूँ. तो ये मेरे पास दूसरी स्टेट इक्वेशन आ गई है. पहली स्टेट इक्वेशन ये थी, दूसरी स्टेट इक्वेशन ये आ गई है. और आउटपुट के ऊपर मैं बात करूं तो आउटपुट के लिए y इज इक्वल टू, मेरे पास जो आउटपुट है y आउटपुट आ रही है. ठीक है, y आउटपुट ये भी है आपके पास, y आउटपुट ये भी है. तो y आउटपुट हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं तो ये y आउटपुट आपके पास x बार ऑफ t, x बार ऑफ t, a ऑफ t+1 और b ऑफ t+1, a ऑफ t+1 और b ऑफ t+1. ठीक है, इन सारों का प्लस आ रही है.
तो ये हम आगे देखते हैं कि हमने करेक्ट स्टेट इक्वेशन से कैसे हमने आउटपुट के ऊपर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, सिंस डी इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट स्टेट द रीच आफ्टर क्लॉक ट्रांजिशन इट इज पॉसिबल टू राइट अ सेट ऑफ स्टेट इक्वेशंस फॉर द सर्किट। तो हमने देख लिया कि ये स्टेट इक्वेशंस हमने कैसे लिखी हैं। लेफ्ट साइड t+1 डिनोट द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप आफ्टर 1 क्लॉक एज लेटर, ठीक है। तो t+1 आपके पास नेक्स्ट स्टेट है, आफ्टर 1 एज क्लॉक है, और x ऑफ t आपके पास प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से t को रिमूव कर दूं, ठीक है, t को मैं अगर रिमूव कर दूं तो मेरे पास a ऑफ t+1 आपके पास ax प्लस bx बच जाएगा, और b ऑफ t+1 आपके पास a बार x बार आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने आउटपुट इक्वेशन पे बात की थी। आउटपुट इक्वेशन जो मैंने ये लिखी थी, ये वाली नहीं, ये वाली, ठीक है। आउटपुट ये आ रही है मेरे पास सर्किट की। तो ये भी एक आउटपुट है, मगर इस आउटपुट पे हम इतना इंटरेस्टेड नहीं है, हम इस आउटपुट में इंटरेस्टेड है। अगर इस y की आउटपुट को मैं देखूं तो y मेरे पास a b और x बार, अच्छा ये और ये सेम ही है, ठीक है। ये और ये सेम ही है, ये आउटपुट और ये आउटपुट सेम ही है। इसी आउटपुट को इसने अलग से यहाँ पे बनाया हुआ है। ये 3 इनपुट और गेट है, और यहाँ पे मेरे पास 2 इनपुट और गेट है। तो x ऑफ t इंटू, ठीक है, x बार ऑफ t इज इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है b ऑफ t, और ये a ऑफ t, b ऑफ t+1 और a ऑफ t+1। तो ये वही इक्वेशन आपको दे रहा है, ठीक है। y ऑफ t आपके पास a ऑफ t प्लस b ऑफ t इंटू x बार ऑफ t आ रहा है। और सिंपली अगर मैं इसमें से t रिमूव कर दूं तो मेरे पास a प्लस b x बार आ जाएगा, ठीक है। ये t+1 आपको नेक्स्ट स्टेट है, t को हम रिमूव कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस तरह से हमारे पास 3 स्टेट इक्वेशंस आ गई हैं, एक आउटपुट की और 2 फ्लिप फ्लॉप्स की। फ्लिप फ्लॉप की जो स्टेट t+1 आ रही है, असल में स्टेट इक्वेशन तो फ्लिप फ्लॉप की हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेट बता रही है कि कैसे निकल रही है इक्वेशन से। और इन इक्वेशंस को हमने इस लॉजिक डायग्राम के थ्रू बनाया है। अब इन इक्वेशन से हम एक स्टेट टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें ये इक्वेशंस को हम इंप्लीमेंट करेंगे। द टाइम सीक्वेंस ऑफ इनपुट आउटपुट एंड फ्लिप फ्लॉप स्टेट can be enumerated in a state table, sometimes called a transition table। जैसे हमारे पास उसके लिए कॉम्बिनेशनल लॉजिक में ट्रुथ टेबल होता था, ट्रुथ टेबल भी हमारे पास इक्वेशन से इंप्लीमेंट हो रहा होता था आउटपुट के लिए, या हम ट्रुथ टेबल से भी हम स्टेट टेबल से, ट्रुथ टेबल से भी हम इक्वेशंस लिख सकते थे। इसी तरह का हमारे पास जब सीक्वेंशियल लॉजिक में स्टेट टेबल होता है, स्टेट टेबल से आप इक्वेशंस भी लिख सकते हो, और आप इक्वेशन से स्टेट टेबल भी लिख सकते हो। स्टेट टेबल के अंदर हमारे पास जो सेक्शन इसके लिए देखें तो हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं, एक प्रेजेंट स्टेट का, एक इनपुट का, एक नेक्स्ट स्टेट का, और एक आउटपुट का, ठीक है। तो ये क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट है वो इनपुट और प्रेजेंट स्टेट दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसलिए चीजें हमारे पास स्टेट टेबल के अंदर होती हैं, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट के अंदर आपके पास स्टेट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप ए बी एट टाइम टी शो हो रहे होंगे। इनपुट सेक्शन के अंदर आपके पास एक इनपुट पे जो x आपके पास इनपुट आ रहा था, ऊपर अगर आप जाएं, इसमें ये जो x आ रहा है ये आपके पास एज एन इनपुट है। तो इनपुट सीक्वेंस आपके पास 0 1s का कोई सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंट स्टेट के लिए। और नेक्स्ट स्टेट आपके पास और आउटपुट आपके पास ये इक्वेशन से डिटरमिन होगी, जो ऊपर हमने स्टेट इक्वेशंस लिखी हैं। तो इस चीज के लिए अगर मैं स्टेट टेबल पे आऊं तो मेरे पास कुछ ये स्टेट टेबल आपके पास आता है, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेट सेक्शन शोज द फ्लिप फ्लॉप 1 क्लॉक साइकिल। नेक्स्ट स्टेट का हमने ऊपर बताया है कि आफ्टर 1 क्लॉक एज के पास आपके पास नेक्स्ट स्टेट आ रही होती है, ठीक है। आउटपुट y एट टाइम t फॉर ईच प्रेजेंट एंड इनपुट कंडीशंस आ रही होती हैं, ठीक। और स्टेट टेबल पे हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखें बाइनरी के, तो अब हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है, 2 फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट आ रही हैं d और एक x है।
तो मेरे पास टोटल 3 इनपुट्स आ रही हैं अगर देखा जाए तो 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स के लिए आप 2⁻³ मैक्सिमम आप 8 कॉम्बिनेशंस बना सकते हो जो 000 से 111 तक जाएंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट स्टेट है वो आपके पास फिर फ्लिप फ्लॉप ए की जो स्टेट इक्वेशन है उनको सेटिस्फाई करे स्टेट टेबल के लिए। तो अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ए ऑफ टी जो है वो मेरे पास आ रहा है, ए ऑफ टी आता है आपके पास ए एक्स प्लस बी एक्स, टी प्लस 1 है ना। नेक्स्ट ए एक्स प्लस बी ऑफ एक्स, बी एक्स आ रहा है, ये टी नहीं है, ए एक्स प्लस बी एक्स है। और बी ऑफ टी प्लस 1 आपके पास था, यहाँ पे अगर मैं दोबारा ये इक्वेशन सही तरह से लिखूं, ए ऑफ टी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, और बी ऑफ टी प्लस 1 आपके पास था ए बार एक्स, और y जो था मेरे पास वो था a प्लस बी, ए प्लस बी एंड विथ x बार। तो ये 3 आउटपुट्स आप देख रहे हैं स्टेट टेबल में। पहले हमने बात की थी कि प्रेजेंट स्टेट होंगी, इनपुट होगी, नेक्स्ट स्टेट होगी और आउटपुट्स होंगी। नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट्स ये आपके पास इक्वेशन से आ रही हैं। ए बी और एक्स ये आपके पास एक तरह से इनपुट्स हैं। तो इन 3 वैल्यूज को देखते हुए मैंने ये 3 वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो ये 3 इनपुट्स हैं, 000 से 11 तक मेरे पास 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। अब यहां पे हम देखते हैं, ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक, यानी या ए एक्स प्लस बी एक्स। तो यहां पे हम देखें ए एक्स आपके पास 0.10 ही होगा, ठीक है। बी एक्स आपके पास बी एक्स 1.00 ही होगा, तो आउटपुट आपके पास 0 ही आ रही है, ठीक है। जब दोनों 0 एंड 0.0 तो 0 ही होगा। अब हमें 2 वंस जब होंगे तो आपको क्लियर मिलेगा, या ए बी 1 हो या ए एक्स 1 हो या बी एक्स 1 हो, तो आपके पास आउटपुट पे 1 आएगा। जिस तरह इस स्टेट में देखें ए एक्स 0.1 आपके पास 0 आएगा, ठीक है, प्लस बी डॉट एक्स 1 आपके पास 1 आएगा, तो 0 प्लस 1 आपको 1 देता है। इसी तरह इसको देख लें, 1 प्लस 1 1.1 आपको 1 देगा, प्लस 0 1 आ रहा है। इसी तरह जब तीनों 1 है तो भी आपके पास 1 आ रहा है। तो ये आपके पास ए की कंडीशन ए ऑफ टी प्लस 1 बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। अब बी पे देखते हैं, ए बार एक्स, जब ए 0 हो और एक्स 1 हो तो आपके पास आउटपुट पे 1 आएगा बी की, ठीक है। ए 0 है, एक्स 1 है, ए 0 है, एक्स 1 है, बाकी कहीं पे भी ये कंडीशन नहीं आ रही है, तो आपके पास ये 2 वंस बिल्कुल ये बी की इक्वेशन आपके पास सेटिस्फाई हो रही है। अब y पे आते हैं, ठीक है। y क्या कर रहा है, ये जो आपके पास स्टेट्स हैं, ठीक है, ये वाली स्टेट्स हैं a ऑफ t, क्योंकि y जो है वो आपके पास ये नेक्स्ट स्टेट्स की आउटपुट से आ रहा है और x बार के साथ कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। 0 प्लस 1 1 आएगा, ठीक है। 1.1 आपके पास 1 आना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल में मैं वापस अगर लॉजिक डायग्राम को देखूं, y में जी मेरे पास ये a ऑफ t और b ऑफ t प्लस 1, तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो x बार के साथ कॉम्प्लीमेंट हो रही हैं, और यहाँ पे ये b ऑफ t आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये a ऑफ t आ रहा है, और ये आपके पास x कॉम्प्लीमेंट होके आ रहा है, तो ठीक है y ये आ रहा है। तो इस y के हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, a ऑफ t और b ऑफ t है, तो ये मेरे पास
प्रेजेंट स्टेट पे ही काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट स्टेट के हिसाब से ही आपके पास आउटपुट निकल रही है, नेक्स्ट स्टेट के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से ही देखेंगे। तो अब जो मेरे पास इक्वेशन थी a प्लस बी और x बार, यानी अभी इधर देखें 0 प्लस 0, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 0 डॉट 0 आएगा तो आपके पास आउटपुट 0 आ रही है। 0 डॉट 1 आपके पास आउटपुट 0 आ रही है। 0 डॉट 1 1 आता है। 1 डॉट 0 आउटपुट आपके पास सॉरी ये एक्स जो है ये इन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, 0 इसको इस कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, 0 प्लस 1 और यहाँ पे मैं अगर एंड का सिंबल यूज कर लूँ तो x 0 है, x बार क्या होगा 1, तो यहाँ पे आपके पास 1 एंड 1 आपको आउटपुट पे 1 ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। यहाँ x बार को 0 करेंगे तो आउटपुट 0 आ जाएगी। एक तो ये है जहाँ x 0 है आपके पास वहां पे 1 पॉसिबल हो सकता है, और 1 भी वहां पॉसिबल होगा जहाँ पे या a1 है या b1 है। ठीक है, तो जो x बार जहाँ x1 है वो तो सीधे सीधे 0 हो रहे हैं आउटपुट के ऊपर। ठीक है, आ गया। अब जब a और b में से कोई एक 1 होगा तो आपके पास आउटपुट पे 1 आएगा। यहाँ पे आउटपुट आपके पास 1 आ रही है, यहाँ पे भी आउटपुट आपके पास 1 आ रही है, यहाँ पे भी आउटपुट आपके पास 1 आ रही है। ठीक है, जो बाकी रिमेनिंग केसेस है दोनों 0 है, तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट 1 नहीं आ सकती। तो आउटपुट पे मेरे पास 3 1 होंगे, 1 2 3 1 आ रहे हैं। तो ये स्टेट टेबल जो है उसी स्टेट इक्वेशन से ही इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, ये वो स्टेट इक्वेशंस को वेरीफाई कर रहा है कि ये वही स्टेट इक्वेशंस हमारे पास आ रही हैं। ओके, तो ये इस तरह हमारे पास ये स्टेट टेबल का पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसमें वही सारी बातें जो मैं कर चुका हुआ हूँ। इन जनरल सीक्वेंशियल सर्किट्स एम फ्लिप फ्लॉप्स एंड एन इनपुट्स नीड्स 2m प्लस n रोज इन अ स्टेट टेबल। अगर मेरे पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है, तो मुझे 2 फ्लिप फ्लॉप्स और n इनपुट्स और एक इनपुट है, तो मुझे 2⁻³ रोज चाहिए होंगी जो 0 से 1 1 0 0 0 से 1 1 तक जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट ऑफ सेक्शन कॉलम एम क्यू फ्लिप फ्लॉप, एक फ्लिप फ्लॉप की एक ही स्टेट हो सकती है। ठीक है, अब क्यू और क्यू बार, अगर 2 फ्लिप फ्लॉप्स है तो आपके पास 2 स्टेट्स आ रही हैं, जैसे प्रीवियस केस में हमारे पास हुआ है। कभी हाँ जी, कभी कभी ये हमारे पास इजी होता है कि हम प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट को ही बीच में रखें। इनपुट को हम बीच में से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, इनपुट कंडीशंस अगर हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि इनपुट कंडीशंस को आप देखो, हम स्टेट इक्वेशंस या स्टेट टेबल में ये निकाल भी सकते हैं। ठीक है, और इट डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन के लिए आप यूज कर रहे हैं। जिस तरह इस केस में आपको नजर आ रहा है ये प्रेजेंट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट है और ये आउटपुट है। अब यहाँ पे आप जो इनपुट है उसको आपने यहाँ से कॉलम निकाल के यहाँ से एक रो के अंदर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और आउटपुट फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 ऐड कर दिया। तो ये भी एक स्टेट टेबल की प्रेजेंटेशन है। आप उसको स्टेट टेबल को इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द लॉजिक। अगली चीज जो आती है वो है स्टेट डायग्राम। अब स्टेट टेबल हमने बना लिया, इस स्टेट टेबल से हम एक फ्लो ऑफ स्टेट्स को इंप्लीमेंट करते हैं। उस फ्लो ऑफ स्टेट्स की इंप्लीमेंटेशन को आप स्टेट डायग्राम कहते हो। ठीक है, स्टेट टेबल की इंफॉर्मेशन ही वो उसमें आप ग्राफिकली आपको मिल रही होती है। अगर हम इस स्टेट डायग्राम प्रोवाइड्स द सेम इंफॉर्मेशन एज स्टेट टेबल एंड इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट टेबल, तो ये स्टेट डायग्राम आपको स्टेट टेबल से ही मिल रही होती है। ये आपके पास स्टेट डायग्राम है। ठीक है, इस स्टेट डायग्राम में आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स कितने हैं? 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ये आपके पास स्टेट्स आ रही हैं। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट 0 0
अब 0 0 से 0 1 तक जा सकते हैं, 1 0 तक जा सकते हैं और 1 1 जा सकते हैं। जो पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स आपके पास आ रही हैं हमने वो लिख ली हैं। अब जितने फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उतने ही आपको स्टेट्स चाहिए होती हैं। इस सर्कल के अंदर हम स्टेट्स लिखते हैं, ठीक है। और ये जो एरो है ये आपके पास 1 इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्लैश के बाद का जो नंबर है ये आपके पास आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये 1 आपको इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, ये 0 आपको आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। द बाइनरी नंबर इनसाइड ईच सर्कल आइडेंटिफाइज द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। जो ये बाइनरी नंबर अंदर सर्कल के अंदर है ये फ्लिप फ्लॉप की स्टेट को बता रहा है, ठीक हो गया। द डायरेक्टेड लाइंस आर लेबल्ड विद टू बाइनरी नंबर्स सेपरेटेड बाय अ स्लैश। द इनपुट वैल्यू ड्यूरिंग द प्रेजेंट स्टेट इज लेबल्ड फर्स्ट and the number after the slash gives the output during the present state with the given input, ठीक है। तो ये 0 जो है आपके पास ये इनपुट और आफ्टर स्लैश आपके पास आउटपुट आ रही है फॉर द प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट आ रहा है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट टेबल एंड स्टेट डायग्राम एक्सेप्ट इन द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन। इसकी जो इंफॉर्मेशन है स्टेट टेबल की और स्टेट डायग्राम की वो सेम है, जस्ट आपको जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो अलग है। द स्टेट डायग्राम गिव्स अ पिक्टोरियल व्यू of state transition in the form of most suitable for human interpretation of circuit operation. The machine represented by this state diagram act to detect a zero in the bit of data stream, ठीक है। तो पिक्टोरियल व्यू जो है वो जरा इंसान ज्यादा उस चीज को पसंद करते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से, तो वो ह्यूमन आई के लिए भी उसको रीड करना इजी होता है। और जो ऊपर जो मशीन हमारे पास आ रही है इसमें हम देखेंगे कि ये जीरो डिटेक्टर है। 0 के ऊपर आपकी स्टेट चेंज हो रही है, 1 के ऊपर आपकी स्टेट वही रह रही है, ठीक है। तो इस पे देखते हैं कि ये स्टेट टेबल आपके पास कैसे आ रहा है, फिर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशंस के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अब इस पे बात करते हैं। स्टेट टेबल में था हमारे पास अगर 0 0 इनपुट है, ठीक है, और 0 0 आपके पास प्रेजेंट स्टेट है और 0 इनपुट है, तो आउटपुट स्टेट आपके पास 0 के ऊपर 0 ही है और आउटपुट भी 0 ही है, ठीक है। 1 जब आपके पास x इज इक्वल टू 1 हुआ है तो आपके पास जो स्टेट थी वो आपके पास 0 1 पे गया है और आउटपुट आपके पास 0 ही है, ठीक है। जो हमने स्टेट टेबल पे स्टेट टेबल को और इसको अगर आप आमने सामने रखो तो आपको सेम वही इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। मैं ज़रा पॉइंटर से इसको रेज करके फिर आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। हमारे स्टेट टेबल में पहली जो कंडीशन थी वो ये थी कि हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है 0 0, ठीक है। तो प्रेजेंट स्टेट हमारे पास आ रही है 0 0। इस प्रेजेंट स्टेट में जब x 0 था तो आउटपुट आपके पास 0 थी और स्टेट आपके पास नेक्स्ट स्टेट भी आपके पास 0 0 ही थी। तो ये एरो वापस इधर आ रहा है, ठीक है, 0 के ऊपर और आउटपुट 0 आ रहा है। जब आउटपुट आपके पास 1 था, ठीक है, जब आउटपुट आपके पास 1 था तो आप नेक्स्ट स्टेट में मूव हुए, 0 1 के ऊपर आ गए, नेक्स्ट स्टेट आपके पास ये 0 1 है, ठीक है, और आपके पास आउटपुट 0 ही थी। अब 0 1 के ऊपर आते हैं, ठीक है। 0 1 के ऊपर स्टेट टेबल में जब x 0 था, ठीक है, तो आउटपुट आपके पास 1 थी, ठीक है, x 0 है, आउटपुट आपके पास 1 है और नेक्स्ट स्टेट आपके पास 0 0 ही है। तो वो ये लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि जब 0 इनपुट आई है, 0 1 के ऊपर जब 0 इनपुट आया, आउटपुट आपके पास 1 थी और आप इधर चले गए हो, ठीक है। और जब आपके पास 0 1 के ऊपर 1 आया है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट 1 1 पे मूव हो रहे थे और आउटपुट आपके पास 0 थी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब 1 1 के ऊपर आते हैं। 1 1 में जब x 0 था तो नेक्स्ट स्टेट आपके पास 0 0 थी, ठीक है। जब 0 था नेक्स्ट स्टेट आपके पास 0 0 थी और आपके पास आउटपुट 1 थी। और 1 1 के ऊपर जब 1 आया तो आप 1 0 के ऊपर मूव कर रहे हो और आउटपुट आपके पास 0 है। अब 1 0 पे बात करते हैं। 1 0 के ऊपर आए तो स्टेट टेबल के अंदर जब प्रेजेंट स्टेट 1 0 थी और इनपुट 0 थी तो आउटपुट आपके पास नेक्स्ट स्टेट जो थी आपके पास 1 0 के लिए 0 इनपुट के ऊपर नेक्स्ट स्टेट 0 0 और आउटपुट 1 है, ठीक है। तो ये हम इधर लाइन लगा रहे हैं, 1 0 से इधर लाइन लगा रहे हैं
इसके ऊपर इनपुट 0 और आउटपुट 1 का लिख रहे हैं। और जब 0 1 के ऊपर 1x1 था तो नेक्स्ट स्टेट आपके पास वही 1 0 ही थी, मींस वापस ये एरो 1 0 की तरफ ही आएगा। और इसके साथ लाइन के ऊपर हम लेबल क्या करेंगे, इनपुट जब हमारे पास 1 थी x की तो आउटपुट आपके पास 0 थी। तो ये आपके पास सारा जो स्टेट टेबल की इंफॉर्मेशन है वो सारी आपके पास इस स्टेट इक्वेशन स्टेट डायग्राम में आ रही है। फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस, हम बात करेंगे लास्ट चीज़ है एनालिसिस की, फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशंस के ऊपर। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा है, जो समराइज करूं अगर मैं उसको, तो जो आपका एनालिसिस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, एनालिसिस के अंदर सबसे पहले सर्किट डायग्राम आती है, उस सर्किट डायग्राम से हमने स्टेट इक्वेशंस लिखी, उन स्टेट इक्वेशन से हमने स्टेट टेबल लिखा और उस स्टेट टेबल से हमने स्टेट डायग्राम बनाया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ डी फ्लिप फ्लॉप ही हो, आपके पास और फ्लिप फ्लॉप्स भी हो सकते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशन आपके पास बहुत इजी है कि जो इनपुट पे है वही आपके पास आउटपुट पे आ रहा है। मगर जब आपके पास फ्लिप फ्लॉप चेंज हो जाते हैं तो आपके पास इनपुट इक्वेशंस भी चेंज हो जाती हैं। The knowledge of the type of flip-flop and the list of Boolean expression of combinational circuit provide the information needed to draw the logic diagram of sequential circuit, जो हम कर चुके हैं कि अगर हमारे पास फ्लिप फ्लॉप का नॉलेज है और बुलियन एक्सप्रेशन हमारे पास है तो हम लोग लॉजिक डायग्राम सीक्वेंशियल सर्किट की बना सकते हैं। The part of the combinational circuit that generate external output is described algebraically by a set of Boolean functions called output equations। वही जो state equations थी हमने वही फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट के लिए देखा था। The part of the circuit that generates the input to the flip flop is described algebraically by a set of Boolean functions called flip flop input equations or sometimes excitation equations। ठीक है, जो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट जो आउटपुट की जो रिक्वायरमेंट थी इनपुट के लिए, ठीक है, a of t plus 1 is equal to a of t into x of t plus a of t into b of t into x of t, ये अब फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप कब फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन या समटाइम एक्साइटेशन इक्वेशंस भी कह सकते हैं। We will adopt the convention of using flip-flop input symbol to denote the input equations variable and a subscript to designate the name of the flip-flop output। ठीक है, हम जो flip-flop की equations पे बात करें तो हम ये जो Q जो symbol है, ठीक है, वो इसकी आउटपुट बता रहा है कि Q है कि Q बार है, और D जो है वो फ्लिप-फ्लॉप की टाइप बता रहा है और ये इनपुट्स बता रहा है। ठीक है, कि D ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू x प्लस वाई, कि ये डी फ्लिप फ्लॉप है, उसकी आउटपुट क्यू के ऊपर देख रहे हैं हम। ठीक है, उसकी जो क्यू आउटपुट है उसको देख रहे हैं और एक्स प्लस वाई है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस फ्लिप फ्लॉप के ऊपर बात करूं, हम क्यू के ऊपर बात, हम एक सिंपल अगर फ्लिप फ्लॉप में देखें तो हम आपके पास क्यू है, यहाँ क्यू बार है और यहाँ डी है और यहाँ पे आपके पास एक क्लॉक है। मगर अगर इस सर्किट के ऊपर हम बात करें, ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप डी ए में ऊपर अगर जाऊं, ठीक है, इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्यू की जगह हमने ए लिखा हुआ था, तो डी फ्लिप फ्लॉप डी बड़ा लिखा है। ठीक है, जो बड़ा है वो ये बता रहा है कि ये डी फ्लिप फ्लॉप है, ए उसका सबस्क्रिप्ट बता रहा है कि ए आउटपुट पे बात हो रही है, जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट है ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये एक इनपुट इक्वेशन है, और सेकेंड इनपुट इक्वेशन डी बी के लिए आ रही है ए बार एक्स, ठीक है, और y आपके पास आउटपुट आ रही है a प्लस बी एक्स बार, जो हमारे पास नजर आ रही थी। तो ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस आती हैं। इन इनपुट इक्वेशंस जो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए हैं उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, हम एनालिसिस करेंगे जेके का, टॉगल टी का, और फिर हम इसी तरह सिंथेसिस करेंगे। जब डिजाइन हम पढ़ेंगे कि हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो हम इस सारे का डिजाइन भी देखेंगे कि हम मुख्तलिफ फ्लिप फ्लॉप्स के साथ कैसे एक सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं, एक वर्ड स्टेटमेंट को कैसे हम एक प्रैक्टिकली वर्किंग सर्किट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर में आपको काफी चीजें, कंसेप्ट आपकी क्लियर होंगे, काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगर इस लेक्चर से आपका कोई भी क्यूरी हुई तो इंशाल्लाह वो हम फिर क्वेश्चन एंड आंसर के लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।